Hello students, this is your teacher Anila Atiq and this is chemistry topic hybridization. Since we already know that this whole universe is composed of matter and matter is composed of smallest possible particle atom. Each atom further is divided into many subatomic particles, out of which we know some are residing in the nucleus. These are protons and neutrons, and some are present outside the nucleus, wandering here and there in the orbitals, known as electrons. Atom has got electrons outside the nucleus. All these electrons are not randomly arranged. All these electrons are arranged in the orbitals according to their energy. In order to become stable, in order to gain maximum stability, every atom needs to get its outermost shell completed. Outermost shell is called valence shell. So, valence bond theory explains this behavior. Valence bond theory says that every atom has to make sharing with another atom, and what is involved in this sharing? Outermost or valence orbitals are involved. Electrons present in these orbitals, all of them do not participate. Only those electrons which are unpaired electrons do sharing. And how does this sharing occurs? Both the electrons present in one orbital are always opposite in their spin. When this happens, bonding occurs and the atom becomes satisfied. So far what we have decided is, in order to gain maximum stability, atoms undergo sharing of electrons and achieve some sort of bonding with some other atoms. So valence bond theory explains this behavior, how this bonding occurs. Now let's look at some example to get this concept clear. For example, we have got methane. Methane is a combination of 1 carbon and 4 hydrogen. When they combine together, carbon gets surrounded by 4 hydrogens this way. And which sort of bonding it is, how many electrons are shared by carbon and hydrogen, is told by valence bond theory. According to VBT, according to valence bond theory, what happens? Carbon belongs to group 6. Group 4. Carbon's atomic number is 6, and if we get the redistribution according to electronic configuration, in 1s there are 2 electrons, in 2s there are 2 electrons, and in p 2 plus 2 4 and 2 remaining. It means this is the first shell and this is the outermost shell or valence shell. We are concerned with the number of electrons present here. So, on the other hand, if we discuss about this hydrogen, hydrogen is present in group 1, its atomic number is 1, only 1 electron is present, which is distributed in first shell. Only one shell is present, so this is going to be the valence shell. Problem arises here because here more than one subshells are present and here only one subshell is present. तो hybridization हमको क्या बोलता है? Hybridization says when carbon and hydrogen approach together, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होने जा रहा है? कार्बन के only valence shell के orbitals will take part in bonding, and जब हम इसका ग्राउंड स्टेट बनाएंगे तो इट वुड बी लाइक दिस, S सबशेल एंड P सबशेल. P सबशेल के फर्दर 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसलिए हम इसके 3 बॉक्सेस बनाएंगे. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन S, 1 and 2, and there are 2 electrons in P. Okay, this is ground state. जब हाइड्रोजन अप्रोच करेगा कार्बन को
तो हाइड्रोजन के कार्बन के साथ शेयरिंग से पहले कुछ चेंजेस ऑर्बिट में आ रहे हैं, कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कुछ चेंजेस आएंगे। These changes are called hybridization। क्या चेंज होने जा रहा है? कार्बन will enter into excited state। इस excited state में from 1s one electron is promoted, gets jumped to empty orbital present in p orbital। p का ये सब ऑर्बिटल है जो अभी तक खाली है। तो यहाँ दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से एक प्रोमोट हो जाता है एम्प्टी सब ऑर्बिटल में। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? वन इलेक्ट्रॉन हियर एंड वन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके आगे चला गया, तो वी गेट दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यहाँ तक तो हमें हेल्प किया, और यहाँ तक की हेल्प से हमें ये पता चला कि एवरी टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज one electron of carbon is shared with 1s electron of hydrogen। एक और हाइड्रोजन 1s इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन 1s इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन 1s इलेक्ट्रॉन। तो क्या होने जा रहा है? ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज 1s 2s, लास्ट ऑर्बिटल है, सेकेंड ऑर्बिटल है, तो ये 2 ही होगा, 2s एंड दिस इज 2p। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो दिस इज 1s, हाइड्रोजन का एक ही वैलेंस शेल है, हर वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होने जा रहा है? यहाँ शेयरिंग होगी। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन विल कम हियर एंड पेयर अप, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोजन विद ऑपोजिट स्पिन, so that कार्बन का ऑर्बिटल completely fill 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है कि one bond is being formed between s and s orbital, one bond is being formed between p and s orbital, another bond is being formed between p and s orbital। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये आइडिया हुआ कि यहाँ कार्बन का s सब शेल, हाइड्रोजन का s सब शेल, कार्बन का p सब शेल, हाइड्रोजन का s सब शेल, कार्बन p, हाइड्रोजन s, कार्बन p, हाइड्रोजन s। इसके हिसाब से तो हमारे पास 2 कैटेगरीज बननी चाहिए। इसका मतलब दिस बॉन्ड formed by s सब ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये वाला बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होनी चाहिए, एंगल भी डिफरेंट होना चाहिए, एनर्जी भी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग 1 कार्बन हाइड्रोजन शुड बी SS एंड 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शुड बी PS। कार्बन का P, हाइड्रोजन का S। तो इस एक बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, एंगल डिफरेंट होना चाहिए, शेप डिफरेंट होनी चाहिए, और इन 3 की एक जैसी होनी चाहिए। पर जब हमने डिफरेंट कैटेगरीज टेक्निक्स अप्लाई की, क्रिस्टलोग्राफी किया, हमने एक्सरे किया, जब हमने डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स अप्लाई की, तो हमें पता चला कि दिस इज़ नॉट सो, ये वाला आइडिया रॉन्ग है। बल्कि मीथेन में ये चारों बॉन्ड्स एक ही, they have got same energy, they have got same shape, they have got same bond length and they have got same angle, bond angle, everything is same here। तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यहाँ बार बार बोलना पड़ा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अ फेलियर हेयर, और हमें कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ी विच वुड एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। ये नया कॉन्सेप्ट विच इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर एंड विच इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द डाउट्स नॉट मेड क्लियर बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमको ये बोलता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में शेयरिंग होने से पहले कुछ चेंज आ रहा है,
कार्बन का वैलेंस ऑर्बिटल अंडरगो करेगा कुछ ऐसा खास बिहेवियर ड्यू टू विच इसके 1 2 3 4 चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स अंडरगो करेंगे कुछ खास चेंज ड्यू टू विच देयर एनर्जी, शेप, बॉन्ड लेंथ एंड एंगल एवरीथिंग बिकम्स इक्वल। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उसकी बेसिस पे हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये हमें पता चलेगा कि आगे चल के बॉन्डिंग इस सॉर्ट की होने वाली है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन, 1 फ्रॉम कार्बन। ये बनने लगे हैं हमारे पास 4 बॉन्ड्स जो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरी फीचर। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। किस चीज़ का मिक्सिंग? मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन? जो इस वक्त डिस्कशन का सेंटर है, जिसके साथ बाकी एटम्स बाहर आके पेरिफेरी पे अटैच होने लगे हैं। सो लेट्स डिवाइस अ फ्यू फीचर्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जितना हमें समझ में आया है, व्हाट कैरेक्टर्स शुड बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन? जी, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स? सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वल। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन जितने ऑर्बिटल्स होंगे, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। अगर यहाँ 1s और 1p ज्वाइन करेगा तो यहाँ हमें 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। अगर यहाँ 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही मिलेंगे। All the hybridized orbitals are showing same energy, same shape. So that is why they are going to make same bond length, और जब दूसरे एटम के साथ ज्वाइन करेंगे तो उसके साथ बॉन्ड एंगल भी सेम बनाएंगे। ये चारों प्रॉपर्टीज चाहे जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं उनके अंदर हमें दिखेगा। ऑल द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपस में जब कभी मिलेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन दे आर हैविंग मोर एनर्जी and less stability, but when they will undergo hybridization, what they are going to achieve is they will achieve less energy but will become more stable। और जब ये सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने पेरिफेरल आने वाले एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो दे विल ट्राई टू अटेन such geometry, such spatial arrangement which offers minimum repulsion between the newly formed orbitals। यहाँ ये बात भी हमारे समझने की है all orbitals take part in hybridization, always undergo hybridization before making a bond। hybridization नहीं होगा तो bond नहीं बनेगा, तो hybridization पहले होना मस्ट है। तो कैसे orbitals hybridization शो करेंगे? Either they are incomplete, they are half filled,
वो भी हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, किसी के पास 2 कम है, किसी के पास 6 कम है, वो सारे शो करेंगे। तो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स विल शो हाइब्रिडाइजेशन। कौन? ऑलवेज आउटमोस्ट ऑर्बिटल। हर एटम का हर ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन करेगा? और करेंगे फुली फिल्ड। ऐसे एटम्स जिनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो चुके हैं, इफ दे हैव गॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दे विल आल्सो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो वो सारे एटम्स कौन है? ऐसे एटम्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 6, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 7। ये तीनों ग्रुप्स के एटम्स अगर इन्वॉल्व हैं, दे विल हैव लोन पेयर। तो इनके वैलेंसी फुलफिल हो जाए तो भी ये नई हाइब्रिडाइजेशन शो करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड इवन those orbitals which are empty, this is only true for those which are making coordinate covalent bonds। तो coordination compounds जिनकी वैलेंसी परमानेंट नहीं होती, जिनकी वैलेंसी वेरिएबल है, they will have empty d and f orbitals। and what is going to happen there? उनका d empty और f empty होने के बावजूद हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो ये सारे के सारे कौन है? ट्रांजिशन है। तो सो फार हमने क्या देखा? अभी तक हमें जितनी बात यहाँ से समझ आई, ऑलवेज hybridization is a process in which all the suborbitals present in valence shell only, they undergo intermixing together, mix होकर they attain new energy, they attain new shape, and this way they make equal number of intermixed or hybridized orbitals which are going to make bonds with the incoming atom. So this is hybridization. अब कुछ conditions हैं जो लाजमी फुलफिल होनी चाहिए, वो conditions फुलफिल नहीं होंगी तो hybridization नहीं हो सकती। These are the conditions which must have to be fulfilled, and in hybridization most important thing is a concept of sigma and pi bond. अगर आपको sigma और pi का difference पता है तो you can easily work out type of hybridization. Sigma bonds. Sigma bonds are always formed by either between S and S or S and P. ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और बनते हैं हमेशा by sharing of one electron coming from one atom and the other electron coming from the second atom. On the other hand, इसके लिए हम ये साइन शो करते हैं। On the other hand, what is pi bond? Pi bonds are always formed between P and P. ये कभी S और S and T के बीच में नहीं बनते। They are always either double or triple covalent bonds. और ये कब बनेंगे? जब सिग्मा फॉर्मेशन हो चुकी है उसके बाद डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंड दे आर डिनोटेड बाय दिस। तो क्या ज़रूरी है हाइब्रिडाइजेशन के लिए? ये ज़रूरी है कि वी शुड नो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जांपल CH4 में कार्बन सेंट्रल मेटल है, मेटल नहीं है, सेंट्रल एटम है, तो कार्बन के लोन पेयर्स काउंट करेंगे और उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमें पता होना चाहिए। So these are two factors which will determine type of hybridization, and type of hybridization determines geometry of the molecule to be formed.
तो पहले हम टाइप्स देखेंगे, फिर मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी कैसे आइडेंटिफाई करें पेपर में बगैर किसी डिटेल में गए कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। ये टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। आप ये टेबल को मेमोराइज मत कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। तो पहले मैं टेबल बनाऊंगी और उसके बाद आपको उसको अंडरस्टैंड करने का मेथड बताऊंगी। 6-7 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन है जी। अगर ऑर्बिटल्स दो हैं ओनली, वन इज एस द अदर वन इज पी, टू ऑर्बिटल्स आर बीइंग पार्टिसिपेटिंग, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp टाइप। और अगर ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के एक तरफ एक एटम, दूसरी तरफ दूसरी एटम, और इनके बीच में ऑलवेज 180 का एंगल है। शेप होगी या ज्योमेट्री होगी इसकी 3D लीनियर स्पाशियल अरेंजमेंट है। एंड इफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स आर मोर देन 2, फॉर एग्जांपल 1s है, एक एटम का ऑर्बिटल s है और उसी एटम का दूसरा सब ऑर्बिटल 2p है, 2p और एक s पार्टिसिपेट करेंगे, तो 1 और 2 3 टोटल मिला के हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स s एंड 2p का मतलब है ऑलवेज विल शो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और जब ये 3, इसका मतलब देखो 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो 3 एटम्स चाहिए सेंट्रल मेटल के अराउंड। ये रहा सेंट्रल मेटल और इसके अराउंड ये आ गए 1 2 3। इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन होगी, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी। तो कैसा होगा, देखो सर्कल के अंदर 360 का एंगल होता है, 360 को 3 से डिवाइड करो तो ये यहाँ पे हर एंगल वुड बी 120। तो इस वाली शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल। If there is 1s and 3p orbital, तो 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स टोटली इंटरमिक्स हो रहे हैं। जब ये आपस में मिक्स होंगे तो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी 1s and 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होगा। और जब ये 4 आ गए तो ये 4 किस तरह का अरेंजमेंट फॉलो करेंगे, ये देखिए। ये सेंट्रल मेटल है, मेटल नहीं है भाई, सेंट्रल एटम है, और ये 4 वुड बी 1 2 3 4। इन सारों के बीच में बॉन्ड एंगल आएगा 109। 4 एंगल्स हैं इसलिए इसका नाम होगा टेट्राहीड्रल। इसके 4 फेसेस बनेंगे, ये देखो, 1 फेस, 2nd फेस, 3rd फेस एंड 4th फेस। इसका नाम है टेट्राहीड्रल। हीड्रल का मतलब होता है फेस। तो इसके 4 फेसेस बनेंगे, टेट्राहीड्रल शेप है इसका। एंड द नेक्स्ट वन टाइप इज, अगर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स 4 नहीं है बल्कि 5 हैं, 1s 3p और 1d, 1 3 4 और 1 5, तो ये हो गए 5 ऑर्बिटल्स। इनका sp3d वुड बी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 5 ऑर्बिटल्स हो गए, तो ये पांचों ऑर्बिटल में आपके समझने की बात है, ये देखिए कैसा शेप बनेगा इनका, 1 2 3। ये प्लेन में है, पेपर के ऊपर है, समझो एक ही प्लेन के अंदर है, इसलिए क्योंकि ये एक ही प्लेन में है इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइगोनल। तो ये तो 3 ऑर्बिटल हुए, इन तीनों ऑर्बिटल के बीच में एंगल होगा 120 का। तो बाकी 2 कहाँ चले गए, वो 2 ये रहे, एक ऊपर एक प्लेन के नीचे,
तो ये टोटल मिला के 5 हो गए। जो प्लेन के ऊपर और नीचे हैं वो अपने हर नेबरिंग के साथ 90 का एंगल बनाएंगे। ये देखो, तो यहाँ दो कैटेगरीज है ऑर्बिटल्स की, 90 का एंगल बनाने वाले दो। तो यहाँ कोशिश करो अगर, तो आपको ऊपर और नीचे प्रेजेंट के साथ, ये देखो एक पिरामिड बन गया, और ये नीचे वालों के साथ प्रेजेंट के साथ देखो दूसरा पिरामिड बन गया। एक पिरामिड ऊपर बना, एक पिरामिड नीचे बना। उससे पहले जो ये शेप बन रही थी इसको हमने ट्राइगोनल कहा था, ये बिल्कुल ऐसा था ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम इजी। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाए 1s 3p and 2d, तो बनने वाला अरेंजमेंट वुड बी 2 + 3 + 1, 6 टोटल ऑर्बिटल्स हैं, एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वुड बी दिस। अब देखो 6 ऑर्बिटल्स हो गए तो शेप चेंज हो जाएगा। शेप ऐसे चेंज होगा, बिल्कुल यहाँ की तरह अंडरस्टैंड करते हैं। प्लेन के अंदर ये 4 होंगे, ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम से 4 ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट इस तरह होगा, और टोटल 6 हैं, 4 हमने बना लिए, एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के नीचे है। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा 1 2 3 4 5 6 और 2 फेसेस पीछे हैं, तो टोटल इसके 8 फेसेस बनते हैं। दैट इज वाई इसका नाम रखा हमने ऑक्टाहेड्रन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी लास्ट टाइप है 1s 3p, रेयरली शो होती है 3d, क्योंकि d जितने ज़्यादा होते जाएंगे, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, ये जितने ज़्यादा होते जाएंगे अनस्टेबिलिटी उतना इंक्रीज करेगी। 3 + 3 + 1, 7 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, और हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3d3। 7 ऑर्बिटल्स हो गए, तो मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इनका ये स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम से जितने फेसेस आपको इस तरफ दिख रहे हैं, इतने ही फेसेस दूसरी साइड पे हैं। 3 डायमेंशनल ये शेप है, एक पिरामिड ऊपर बनेगा एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसलिए इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5। इसके 5 एंगल्स हैं, और जो पिरामिड ऊपर है उतना ही पिरामिड नीचे है, इसलिए इसका नाम रखेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिड। अब इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है, एवरी सब ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस ऑर्बिटल कैन नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। एक ही ऑर्बिटल के कौन से सब ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं, वो जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। फॉर एग्जाम्पल S and P इंटरमिक्स हो सकता है, P and D इंटरमिक्स हो सकता है, S और D के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है S P and D तीनों आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं। तो ओनली दोज ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन विच हैव गॉट अ मिनिमम डिफरेंस बिटवीन देयर एनर्जी। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद मिलने वाले ऑल द ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू शेप एंड एनर्जी। चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर पेपर में हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दीज ऑर्बिटल्स। और शेप बनाना बताती हूँ आपको, तो इतना ज़रूर आपको पता होगा, ये स्फेरिकल वाला कौन है,
ये सब ऑर्बिटल है s, और ये ऐसा डंबल वाला, डंबल शेप है, ये p है। बॉन्डिंग से पहले, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये स्फेरिकल की शेप है और ये डंबल वाला p, ये रहा, ये p है। तो जब ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज होंगे तो किस तरह होंगे, मैं बोला दूसरा कलर यूज़ कर लूँ ताकि जब ये इंटरमिक्स होंगे तो हमें ज़रा आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। ये रहा S और ये रहा P। तो जैसे हमने मीथेन को ड्रॉ किया था, मीथेन कैसा होगा, कार्बन, ये रहा हमारा कार्बन, 1 2 3 4। शेप याद रखिए, 4 बॉन्ड्स हैं तो 4 बॉन्ड वाला हमेशा ट्राइगोनल, नो टेट्राहीड्रल शेप बनाएगा। तो ये देखिए कैसी शेप बनाएंगे, ये रहा p ऑर्बिटल, सबका p ऑर्बिटल, कैसा p ऑर्बिटल, कार्बन के सारे 1s और 3p जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो क्या शो करेंगे, sp3। तो हम p ऑर्बिटल थोड़ी बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे नए बनने वाले ऑर्बिटल्स इस तरह के हैं। ये इनका p स्ट्रक्चर, ये इनका s कैरेक्टर, ये सारे के सारे ऐसे बनेंगे और इनके साथ हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। Everywhere 1 electron is shared by hydrogen. Everywhere 1 electron is shared by carbon. ओके, अब हम कुछ रिवीजन एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं ताकि पेपर में हमें आइडेंटिफाई करना आसान रहे। यू हैव टू प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स अगेन एंड अगेन। आपको जितना अच्छा स्ट्रक्चर का पता होगा आप उतना जल्दी हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे, आपको एटॉमिक नंबर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, दिस इज Z नंबर। Z नंबर क्या है, Z नंबर कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर को हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को हम 1 लोन पेयर काउंट करेंगे। Z नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफ दिस Z नंबर इज 2, हमने देखा था इंटरमिक्सिंग कभी एक ऑर्बिटल की नहीं होती, मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स की होगी। तो अगर इंटरमिक्सिंग 2 ऑर्बिटल्स की है तो वुड बी टाइप sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 Z नंबर आ रहा है तो वुड बी टाइप sp3। 4 के लिए 1 and 2 sp3। 5 के लिए sp3d, sp3d2, sp3d3। चलो आइडेंटिफाई करते हैं, एक एक एग्जाम्पल वर्कआउट कर लेते हैं इनके लिए। तो चलो, मेरे पास है BeF3। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेरिलियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2, तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब बेरिलियम बॉन्ड करेगा तो 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा। ये एक F है, ये दूसरा F है। हमें पता है कि जब 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर ही होगा, 180 का ही एंगल होगा। तो इस लीनियर स्ट्रक्चर पे काउंट करो, देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। बेरिलियम ग्रुप 2 में प्रेजेंट है, इसके पास ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। याद करो मैंने बताया था ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7, इनके सिवा किसी के पास लोन पेयर नहीं होता। तो बेरिलियम की बात करते हैं, वापस आते हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए BeF3 के लिए? ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 सिग्मा हो गए। और लोन पेयर कितने हैं? कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका Z नंबर आएगा 2। 2 के हिसाब से देखिए BeF3 इज गोइंग टू शो sp हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जांपल वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट कीजिए आपके पास है SO3। SO3 में सेंट्रल एटम है सल्फर। सल्फर ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। आपको SO3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चले आ जाइए, ये रहा S और 3 O। सल्फर प्रेजेंट इन ग्रुप 6 का मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा? एक ऑक्सीजन,
दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। तो सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। हाँ, इसके पास देखो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ सिंगल को काउंट करेंगे। ये आपके लिए सिंगल मैंने रेड में शिफ्ट कर दिया। हम सिर्फ रेड को काउंट करेंगे तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3। SO3 के लिए 3 हो गए सिग्मा, और 3 सिग्मा के साथ SO3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका Z नंबर आएगा 3। 3 के हिसाब से देखिए SO3 is going to show sp2 hybridization। एक और एग्जांपल वर्कआउट करते हैं। H2O। H2O का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ये रहा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पेयर दूसरा पेयर। ये क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो देखिए इसके सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 1 and 1 2 हो गए इसके सिग्मा बॉन्ड्स। और इसकी लोन पेयर कितने हैं? 1 पेयर अनदर पेयर, 2 पेयर्स हैं, तो 2 + 2 का मतलब है इसका Z नंबर आएगा 4। तो वाटर इज गोइंग टू शो अस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आपका होम एक्टिविटी, आप क्या फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट hybridization status of phosphorus in PCl5 and find out silicon in silicon fluoride and sulfur in SO2-2। क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। देखेंगे अगर वो ग्रुप 6 और 7 से बिलोंग करता है तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे, और यहीं से वर्कआउट कर लीजिए। हमेशा ये याद रखिए sp3d, sp3d2, sp3d3 नॉर्मल कन्फिग्रेशन नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन ओनली आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलेगा। ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा ऑर्डिनरी सारे के सारे एलिमेंट्स सिर्फ ये 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी वर्कआउट करवाते हैं। ये देखिए एक ओके CH3 CH2 CH2 जी। अब यहाँ बताइए कि भला इसमें 4 कार्बन्स हैं, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए लाजमी है आप स्ट्रक्चर को पहले ओपन करेंगे। ये हो गया हमारा ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर। 3 हाइड्रोजन्स ये रहे, 2 हाइड्रोजन्स ये रहे, एक ही हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन्स यहाँ प्रेजेंट है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 सिग्मा है इसके लिए। ठीक है, ये कार्बन क्या कर रहा है? ये 4 सिग्मा शो कर रहा है। 4 बॉन्ड कहाँ बनने चाहिए? sp3 में बनने चाहिए। इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ आइए, इस कार्बन के सिग्मा काउंट कीजिए 1 2 3 4। यहाँ भी वही सिचुएशन है, 4 सिग्मा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस कार्बन को काउंट कीजिए 1 2 और ये सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा है। तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? 3 ऑर्बिटल्स हैं टोटल। 3 ऑर्बिटल आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लास्ट कार्बन की बात करते हैं 1 2 3। ओनली सिग्मा को काउंट करेंगे, पाई को काउंट नहीं करेंगे। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।